Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss the structure of stupa. That is part of your fourth chapter of history, thinkers, beliefs, and building. In this chapter, we have discussed about the architecture of stupa in my previous video. Here, we will discuss about the little bit information, the structural information about stupa. Stupa, a Sanskrit word meaning heap, uh, originated as a simple semicircular mound of earth, later called anda, gradually it evolved into the more complex structure balancing round and square shapes. Above the anda was the harmika, a balcony-like structure that represented the above of the gods. Arising from the harmika was mast called the yasti, often the surmounted by chhatri or umbrella. Around the mound was the railing separating the sacred space from the secular world. The early stupa at Sanchi and Bharahut were plain except for the stone railings and the resembling bamboo or wooden fence and the gateways, which were richly carved and installed at the four the cardinal points. Worshipper entered through the eastern gateway and walked around the mound in a clockwise direction, keeping the mound and the right the emitting the sun's course through the sky. Later the mound in the stupa came from elaborately carved with niches and sculptures as the Amravati and Sahaji ki Dheri, Peshawar, Pakistan. Here I want to explain you about the particular place. In my previous video, I think that where I mentioned that the worshipper entered through the eastern gateway and walked around the mound in anti-clockwise. Please change, it is clockwise. दाहिने की तरफ से मूव करते थे. शायद मैंने पुराने वीडियो में एक वर्ड मिस किया, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोला. जब भिक्षु और उपासक और उपासिका या जो दर्शनार्थी स्तूप जाते थे दाहिने से प्रवेश करके, वे दाहिने से स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाते थे. दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट. इसको ठीक कर लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे कहता है कि सांची और भरहुत जो दो स्तूप थे, वो स्तूप का जो अंडा था वो एकदम प्लेन है. लेकिन बाद में अगर प्लेन है तो इनमें सिर्फ दो जगह का नक्काशी दिखती है, और वो नक्काशी सिर्फ उनकी रेलिंग्स पे है और उनके सुंदर ग्रैंड गेटवे पे है. गेटवे के अलावा अंडा पूरी तरीके से प्लेन है. लेकिन बाद में जो स्तूप बने, जैसे अमरावती बना, जैसे पेशावर की शाहजी की ढेरी का स्तूप बना, ये स्तूप पूरी तरीके से डेकोरेटेड थे. इसमें अंडा भी डेकोरेटेड था, ठीक वैसे ही जैसे रेलिंग्स और ग्रैंड गेटवे डेकोरेट थे. नागार्जुन कोंडा का स्तूप पूरी तरीके से डेकोरेटेड था. तो इस तरह के डेकोरेशंस अब संपूर्ण भाग में दिखाई देते हैं. डेकोरेशन में क्या बनते थे, क्या चीज़ें थी, जब हम सिंबल एंड साइन पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे. अब बात करते हैं, कहता है कि अब इनकी पूजा करने के लिए जो दर्शनार्थी प्रवेश करते थे कैसे करते थे. तो कहता है कि worshipper entered through the eastern gateway and walked around the mound in a clockwise direction, keeping the mound on the right, the emitting the sun course through the sky. Later the mound of the stupa came to be elaborately carved with the niches and sculpture as Amravati and Sahaji ki Dheri is Peshawar, Pakistan. If you will see this paragraph, this picture, that is stupa. That is a structure of stupa. That is 4 gateway, 1, 2, east, west and north, south. That is stupa architecture. The great stupa, Sanchi and
provided a horizontal perspective. Here okay, if you will see again this picture, I think कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस आने के कारण मैं फिर से पेज पे आपको ले चल रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे हम थे। अब स्तूपा के आर्किटेक्चर को मैं आपको दिखा रहा था। आई वॉज शोन द आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपा बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आई हैव टू रिटर्न बैक द फर्स्ट पेज एंड देखिए हम फिर वहाँ पहुँच रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं। दैट इज़ द स्तूपा आर्किटेक्चर। यही मैं आपको शो कर रहा था, इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। द elevations of the great stupa and the elevations provides a vertical perspective, horizontal perspective और vertical perspective दोनों तरीके से दिखाया है। अगर अपर पोर्शन में देखें तो एक आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, हर्मिका के बीच में आपको यष्टि दिखेगी और उसमें अम्ब्रेला छतरी दिखेगी। आपको चार तरफ तीन पिलर नुमा खड़े हुए चीज़ें दिख रही हैं। दैट इज़ नॉट पिलर, दैट इज़ द ग्रैंड गेटवे। दरवाजे हैं चारों दिशाओं में और इन्हीं के पूर्वी द्वार से स्तूप में प्रवेश करते थे भिक्षु और दक्षिणावर्त दाहिनी की तरफ से स्तूप को चक्कर लगाते हुए वो वेदिका पे चढ़ते थे। ये वेदिकाएं रेलिंग्स संसार को उनसे अलग करती थी। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरिंग द स्तूपा, द फेट एंड अमरावती एंड सांची। माय डियर स्टूडेंट, ईच स्तूपा हैज history of its own. Each stupa has history of its own. This line is very important. सभी स्तूपों का अपना एक इतिहास है। हर स्तूप अपने में कुछ न कुछ संस्मरण लिए हुए है। जब हम उसे देखते हैं, जब इतिहासकार उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। ये बताते हैं कि ये कैसे बने, ये बताते हैं कि इनके साथ साथ इनकी खोज का क्या इतिहास है, किसने खोजा, कब खोजा, खोजने के संदर्भ में क्या चीज़ें उसे मिली और क्या स्तूप अपने वास्तविक स्वरूप में उन्हें मिला। ये सारी चीज़ें स्तूप में समाहित हैं। स्तूप का अपना एक इतिहास है। एवरी स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। एज वी हैव जस्ट सीन, some of these are stories of how they were built, but there are stories of the discoveries as well. Let us now turn to some of these. In 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in that seemed to be hill. Some year later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. Although he found several pieces of sculpture and made details drawing of them, these reports were never published. But the existence of Amravati was came to be known. कहता है 1796 के आसपास आते आते एक कहानी है, इसमें एक राजा एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहता था 1796 में, और अचानक अमरावती की स्तूप के उसे अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी से संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कल मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में आए। उन्होंने मूर्तियों को देखा, उन्होंने कुछ जगह पे मूर्तियाँ कलेक्ट की, इस पे बहुत सारा इनका पिक्चराइजेशन किया, पिक्चर बनाए, स्कल्पचर्स के पीसेस इकट्ठा किए, ड्राइंग की इसकी।
लेकिन ये अलग बात थी कि वो ड्राइंग कभी पब्लिश नहीं हुई। फर्स्ट टाइम इन 1854 Violet Elliot, the commissioner of Guntur, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. गुंटूर के कमिश्नर इलियट पहुंचे। इलियट ने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वो उसको अपने साथ मद्रास ले गए। एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। 1854 वाल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर जो आए, कहता है कि उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ये चीजें उन्हें लगा। 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken at different places to the Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the Indian office in Madras, and some even to London. It was not unusual to find these sculptures adorning the garden of British administrators. In fact, many new officials in the area continued to remove sculptures from the sites on the ground that earlier officials had done the same. कहता है कि 1850 के आसपास अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पे ले जाए जा रहे थे। खूब लूट मची थी। कुछ पत्थर कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास के इंडिया हाउस में पहुंचे। कुछ पत्थर लंदन ले जाए गए। अंग्रेज अधिकारियों के बाग और बगीचों में अमरावती स्तूप की मूर्तियां यत्र तत्र फैला दी गई। कई अंग्रेज अधिकारियों ने बागों में अमरावती की मूर्तियों को ऐसे लगाया जैसे मानो ये उनकी अपनी विरासत हो। उनके बागों में अमरावती की मूर्तियां ऐसे ही पाई जा सकती हैं। It means it was open loot by the British officials. So that's why Amravati was not in existence now that time. It was looted by not only the British officials, it was looted by the traders, the contractors and everyone. According to their own ways, they looted their important and precious sculptures of the Amravati. That is the fate of Amravati. अमरावती पूरी तरीके से नष्ट हो गई। आज अपनी जगह अमरावती नहीं है। उसे कुछ अवशेष नाम मात्र के बचे हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ सारे अंग्रेज अधिकारी उसे लूट रहे थे, वहीं कुछ मुट्ठी भर अधिकारी ऐसे भी थे जो ऐसा मानते थे कि ये महत्वपूर्ण हेरिटेज अपनी जगह पे होने चाहिए। अगर किसी को भी ले जाना है तो इन्हें एक्चुअल फॉर्म में ना ले जा करके इनको सिंबॉलिक फॉर्म में ले जाए, इनके प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति ले जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आर्कियोलॉजिस्ट H.H. कोल का। One of the few men who had different point of view was an archaeologist named H.H. Cole. He wrote, "It seemed to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of the original work of the ancient art." He believed that the museum should have plaster cast facsimils of the sculptures, whereas the originals should remain where they had been found. Unfortunately, Cole didn't succeed in convincing the authorities about Amravati, although his plea for in situ preservation was adopted in the case of Sanchi. पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल ने लिखा
कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होना या लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियों की खोज की जगह पर ही रहने देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी न कर सके। लेकिन खोज की जगह संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। यहां पे वो थोड़े सक्सेस रह गए। सांची क्यों बच गया, अमरावती क्यों नहीं बची, कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप यू आर गेटिंग समथिंग द फेट ऑफ सांची एंड फेट ऑफ अमरावती। लेट अस डिस्कस about Sanchi. Why did Sanchi survive while Amravati did not? Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the sites. When Sanchi was discovered in 1818, three of its four gateways were still standing. The fourth was laying on the spot where it had fallen, and the wood was in good condition. Even so, it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands where the Machitya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory. Here, author want to discuss that why Sanchi survived and while Amravati didn't. सांची बच गई, अमरावती नष्ट हो गई। कहता है शायद अमरावती पहले ढूंढ लिया गया था, सांची बाद में ढूंढा गया 1818 में, इसलिए शायद एच कोल अपनी बात को अमरावती के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को समझा न सके, जो लोगों को बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी, और इसलिए सांची बच गई। शायद इसलिए भी कि सांची उस ट्रेड रूट पे नहीं थी, रेल रूट पे नहीं थी, उस ट्रैक पे नहीं थी जो व्यापारिक माध्यम से समुद्र तक जुड़े हुए थे, और अमरावती थी। शायद अमरावती कॉन्ट्रैक्टर्स की निगाह में आ गया, ऑफिशियल्स की निगाह में आ गए, ब्रिटिश के बड़े बड़े पदाधिकारी इनको देख लिए, इनकी सुंदरता को, और इसलिए वो उसको अपने यहाँ उठा ले गए, अमरावती को न देख पाए, इसलिए अमरावती बची रह गई। शायद अमरावती के प्रिजर्व और प्रोटेक्शन में किसी भी महत्वपूर्ण शासकों का योगदान नहीं था, जैसा कि सांची में भोपाल की बेगमों ने किया। सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने उसके प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जितने कार्य किए, इसलिए भी सांची बची रह गई और अमरावती नष्ट हो गई। दैट इज द फेट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज important for you for your future examination। सांची नष्ट हो बची है, अमरावती नष्ट हो गई, क्यों, एक्सप्लेन करी। आपको इन्हीं सारी बातों पे बात करनी है। कहता है कि सांची बच क्यों गई। अब इस बात को फिर मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना उसे महत्वपूर्ण था। और 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, मतलब उसके 3 ग्रैंड गेटवे वाज स्टैंड एज इट इज, वन वाज ले डाउन, एक नीचे गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन ले जाया जाए, एंड नाउ दैट टाइम इट वाज रिकमेंडेशन कि इनके तोरण द्वारों को लंदन और पेरिस भेज दिया जाए।
अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका समस्त गौरव, जिसकी समस्त ब्यूटी आज खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सांची के मूर्तिकला पे, हम बात करेंगे सांची के स्कल्पचर पे। स्कल्पचर्स, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक I would like to show this picture, sculptures. What you have seen in this picture? In this picture, you have seen the sculpture of this grand gateway. The eastern gateway, Sanchi. Notice the vibrant sculpture. आप ध्यान से स्कल्पचर को नीचे से देखिए, पत्थरों को कितनी अच्छे से तराशा गया है। हाथियों के निशान, पुष्पों के निशान, बड़ी संख्या में यक्ष यक्षिणियाँ, पत्थरों के नक्काशीदार कटाव, हाथियों के गजमस्तक, हाथियों के सिर और द्वार त्रिमेधी है, 3 मेधियाँ मिली हैं। आप दोनों के साइड में देखिए, आपको वहाँ पे कुछ हाथी दिखेंगी, हाथियों के साथ साथ शेर की आकृति भी है, पहले नीचे के ग्रैंड गेटवे में देखेंगे तो। और कुछ इमेजनरी एनिमल भी स्तूपों में दिखाए गए हैं। कुछ स्तूप के चैत्य हैं, कुछ सिंबॉलिक रूप में। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए स्तूप और कुछ यहाँ पे आपको ऐसे एनिमल दिखाई देंगे जो इमेजनरी हैं। अगर इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको शेर की आकृति भी यहाँ दिखाई दे रही है। इन चीज़ों को समझिए। अब इन चीज़ों को फिर से पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं इन चित्रों को जब बढ़ा रहा हूँ जूमिंग, तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। दिस पिक्चर इज आल्सो स्कल्पचर ऑफ फ्रॉम सांची। आप देखिए 3 शेरों की आकृति दिखाई गई है, सांची से लिया गया। कितनी अच्छी और आकर्षक है। इट इज़ वेरी इलस्ट्रेटिव एंड अट्रैक्टिव आल्सो। व्याख्या कर रही, कुछ कहानियाँ बता रही हैं। आप अगर और आगे देखें तो सांची का एक पिक दिखाई देगा। सांची में 3 तरह के थे। द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। इफ यू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन यू विल सी द majestic stupa complex on top of hill carving as it where you request the guard he will stop the train and the little। जब आप जाएंगे तो आपको स्तूपा दिखेगा। आप स्तूपा के आगे चलें, आप उन चीज़ों पे चलें जहाँ हम थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कल्पचर ऑफ सांची। सांची के स्कल्पचर पे बात करेंगे। दैट इज आल्सो स्कल्पचर अमरावती। दैट इज द अमरावती स्कल्पचर। Sculpture 2nd century से ही अमरावती, आंध्र प्रदेश। द डिपिकेटिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धास फ्रॉम हिज प्लेस। अपनी जगह से बुद्ध को जाते हुए इस स्कल्पचर में दिखाया गया है। इस स्कल्पचर के बाद देखिए बुद्ध घोड़े पे हैं, उनके पीछे छतरी लिए हुए लोग हैं, कुछ लोग उनके आगे चल रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ साथ हैं। दैट इज आल्सो शोन बाय दिस स्कल्पचर। स्कल्पचर्स के कुछ और पोर्शंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे थेरियों के चित्र है। थेरी गाथा पे हमने बात की थी। दिस पिक्चर ऑफ थेरी, थेरी इट मीन्स द लेडी हु अटेन साल्वेशन हिमसेल्फ, जो खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करती थी, थेरी कहलाती थी। वोमेन वाटर कैरीड मथुरा 3rd century सी। हमने आपको पुन्ना की स्टोरी बताई थी, वो वही थेरी थी। अब हम चलेंगे। दैट इज आल्सो देखिए वोटिव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची। सांची के इंस्क्रिप्शंस हैं। हमने स्तूपा का आर्किटेक्चर डिस्कस किया और अब स्कल्पचर पे हम बात कर रहे हैं। स्कल्पचर सांची, अमरावती, भरौत, किसी भी स्तूप के स्कल्पचर को देखें। नागार्जुनीकोंडा, भाजा, कारले, चुन्नार, बेडसा, बिम्बडाने, कुशीनगर, कहीं भी आप बात करें तो आपको स्तूप के आर्किटेक्चर पर बस आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसकी भव्यता, उसकी विराटता, उसकी डिवाइन पावर आपको आकर्षित करेगी। ऐसा लगेगा कि कोई बुला रहा है। इस चित्र में एक आपने ध्यान न दिया, इधर एक लेडी है सबसे नीचे पिलर में। अगर राइट साइड के पिलर पर ध्यान दें तो राइट साइड के पिलर के ऊपर एक महिला झूलती हुई नजर आ रही है।
हाथी के बगल में, दैट इज सालभंजी का। वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट सालभंजी का। अब स्कल्पचर पे बात करते हैं। स्कल्पचर्स के कुछ और पोर्शंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, इन पिक्चरों को ध्यान से देखिए, कितने सुंदर और मार्वलस है। चक्र, मोर, पंख सहित शेर, गजलक्ष्मी का अंकन, और फिर आपको यहाँ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न गेटवे दिखेगा जहाँ पे बुद्ध जा रहे हैं। लुक एट द फिगर 4.13 फिगर को देखिए। फर्स्ट साइट एट द स्कल्पचर सीम टू बी डिपिक्टेड रूलर सीन्स with touched hearts and tree. However, art historians who have carefully studied the sculpture and Sanchi identify its scenes from the Vesantar Jatak. This is a story about generous prince who gave away everything to Brahmins and went to live the forest with his wife and children. As you can see in this case, the historians often try to understand the meaning and sculpture by the comparing the textual evidence. इस एविडेंस को इतिहासकार समझ न सके, लेकिन जब उन्होंने वेशांतर जातक की कहानी पढ़ी, तब वेशांतर जातक की कहानी में एक उल्लेख है कि एक राजा अपना समस्त राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य ब्राह्मण को दान करके अपनी पत्नी, अपने पुत्र के साथ जंगल चला जाता है। तब इस वेशांतर जातक की स्टोरी के आधार पे हिस्टोरियन ने जो ये कहानी पत्थरों पे दिखाई गई थी उससे रिलेट किया। अब बात करते हैं आपके टॉपिक से, स्कल्पचर। वी हैव जस्ट सीन, वी हैव डिस्कस, आई हैव शोन द वेरियस पिक्चर अबाउट स्कल्पचर। वी हैव जस्ट सीन हाउ स्कल्पचर वर रिमूव्ड फ्रॉम स्तूपा एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टू यूरोप. This happened partly because of those who saw them considered them to be beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves. Let us look at some of these more closely. 9.1 Stories in Stone. You may have seen the wanderings, the storyteller carrying a scroll of cloth or paper with pictures on them to pointing the pictures as they tell the story. आपने बचपन में कुछ लोगों को सुना होगा कहानी कहते हुए अपने साथ एक कपड़े पे बने हुए कुछ आकृतियाँ ले चलते हैं, और जब कहानी सुनाते हैं तो उन कपड़े पे बने चित्रों को आपको दिखाते हैं, तो आप उन दोनों चित्रों के आधार पे इंटररिलेट करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आने लगता है, सब कुछ आपको क्लियर व्यू दिखने लगता है कि स्कल्पचर्स क्या है. लुक एट द फिगर 4.3 जिस पे हमने बात कर ली. सिंबल ऑफ वर्शिप, इन चीज़ों पे किस चीज़ों को सिंबलाइज रूप में दिखाया गया, क्या थे जो इम्पोर्टेंट थे. बिफोर डिस्कस आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल. Symbol, there were 5 symbols play very important role for the Buddhism. The 5 symbols, what were the 5 symbols? They were the place where Buddha become or where Buddha attained enlightenment. 5 जगहों पे 5 चीज़ों का बात की गई बुद्धिज्म में. कहा गया है कि इन चिन्हों की बात की तो जन्म, बुद्ध के जन्म को, पहले बुद्ध के गर्भ की बात करते हैं. जब बुद्ध गर्भ में आते हैं अपनी माँ के, व्हेन ही केम इन द, आई डोंट नो पर्टिकुलर मीनिंग, गर्भ में आना, बुद्ध के गर्भ में आते हैं तो वो हाथी से दिखते हैं, हाथी से दिखाए जाते हैं. हाथी बौद्ध धर्म में बहुत ही ऑस्पिशियस एनिमल के रूप में लिया गया है. हाथी को सभी धर्मों में ऑस्पिशियस एनिमल मांगा गया है, या वो बौद्ध धर्म हो, या वो ब्राह्मण धर्म हो, या वो जैनिज्म हो, सभी जगहों पे हाथी को एक ऑस्पिशियस एनिमल के रूप में ही लिया गया है. फर्स्ट सिंबॉलिक रूप में जब हाथी शो करता है तो उसे कई सारी बातें, एक जगह गजलक्ष्मी प्रकार की हमें दिखाई देती है शेप में, और दूसरी जगह हमें बुद्ध के गर्भ में आने के सिंबॉलिक रूप में हाथी दिखता है. बुद्ध के जन्म को स्कल्पचर में सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है लोटस से और बुल से.
बुल और लोटस, दे एक्सप्लेन द बर्थ ऑफ बुद्धा ऑन सिंबॉलिक वे। लाक्षणिक आधार पे कमल और साढ़ ये बुद्ध के जन्म को एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर बुद्ध के गृह त्याग, जब बुद्ध घर छोड़ के चले जाते हैं, इसको सिंबॉलिक रूप में घोड़े के रूप में दिखाया गया। स्कल्पचर में घोड़ा दिखता है, इसका मतलब कि बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग कर रहे हैं। तीसरे सिंबल के रूप में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष दिखाया गया है। पीपल के वृक्ष जब भी सिंबॉलिक रूप में दिखे, इसका मतलब कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट, ही कॉल्ड तथागत, ही कॉल्ड बुद्धा। एक्चुअली बिफोर इनलाइटमेंट देयर नेम वाज सिद्धार्थ। एवरी डिस्कशन, एवरी वीडियो मैंने बुद्ध बुद्ध कहा है। उनके प्रीवियस नेम सिद्धार्थ का नाम मैंने बहुत कम लिया है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के पहले शाक्य के राजकुमार सिद्धार्थ ही थे, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध के रूप में सभी के द्वारा जाने गए। तीसरा निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति को एक्सप्लेन करने के लिए बुद्ध के पद चिन्ह, बुद्ध के पैरों के निशान दिखाए गए। निर्वाण की प्राप्ति इट मीन्स बुद्ध की अंतिम अवस्था को दिखाने के लिए बुद्ध के पद चिन्हों का इस्तेमाल सिंबॉलिक रूप में किया गया है स्कल्पचर में। और पांचवा, बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखाया गया है। ये है स्कल्पचर में इनका योगदान, इन 5 महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में, 5 महत्वपूर्ण सिंबल जो दिखाए। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें सिंबॉलिक रूप में स्कल्पचर्स में इस्तेमाल किए गए हैं। ये सिंबल पूजनीय थे बौद्धों के द्वारा। हम नेक्स्ट वीडियो में सिंबल ऑफ वर्शिप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।